तो फैक्ट इन इशू का डेफिनेशन वी हैव सीन. लेट अस सी व्हाट एक्सप्लेनेशन इज सेइंग. एक्सप्लेनेशन इज सेइंग दैट under CPC we frame issue of fact. CPC में हम फ्रेम करते हैं इश्यू ऑफ फैक्ट अंडर ऑर्डर 14. इश्यू ऑफ फैक्ट क्या होता है? इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस होता है. इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस मतलब WH क्वेश्चन के फॉर्म में. सपोज अगर हमें यह पता करना है कि क्या ए जो है वो एडॉप्टिव सन है बी का. Suppose we have to determine whether this A is adoptive son of B or not. क्योंकि adoptive son from the date of adoption he has similar life just like the natural son of that family. तो वाइफ की कंसेंट से अडॉप्शन हुआ था, लेकिन जब प्रॉपर्टी देने की बात आई तो शी इज नॉट अग्रीइंग फॉर. तो अब सवाल ये है कि क्या ए एडॉप्टिव सन है बी का? तो सिविल मैटर है. हाउ वी विल बी फ्रेमिंग इश्यू ऑफ फैक्ट? इट विल बी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में. हम ऐसे फ्रेम करेंगे वेदर ए इज एडॉप्टिव सन ऑफ बी. Let us take one more matter. Let me explain this, then I'll come to criminal matter. Issue of fact under CPC under order 14 is always interrogative sentence. इस interrogative sentence का जो positive form होगा, assertive form, that is the fact in issue. Assertive form मतलब positive form. इसका positive form क्या हो जाएगा? That A is adoptive son of B and this will be called as fact in issue. तो जो हम सीपीसी में फ्रेम करते हैं इश्यू ऑफ फैक्ट, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होता है, उसी का पॉजिटिव असर्टिव फॉर्म को हम फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं. लाइक what will be the positive assertive form of this sentence? That A is adoptive son of B. इसीलिए देखोगे आपके बैरक में सारे इलस्ट्रेशन लिखा है that A cause B is death, that A has intention to cause B is death. that करके क्यों शुरू किया है? Because from issue of fact they have taken the positive form of that sentence. Understood? अब हम देख लेते हैं through the illustration. Suppose Satakshi has killed X. Satakshi ने X को मार दिया है. It means on her allegation of murder will be. Let us say what will be the fact in issue? That Satakshi had intention to kill X. सताक्षी की इंटेंशन है उसे मारने में. That सताक्षी caused X death because this is the mental element, mens rea for the offense of murder, and this is the actus reus for the offense of murder. तो prosecution interested होगा proving कि सताक्षी का intention था before killing X, she has caused X death. She will be claiming that, हो सकता है वो claim करे, she will be definitely claiming some defense that Satakshi at the time of doing the act which caused X death was of unsoundness of mind. This will also be the fact in issue क्योंकि ये disability है.
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस पे कौन सी प्लीड करेगा? दैट इज ऑल्सो द फैक्ट इन इशू बिकॉज दिस इज अ डिसेबिलिटी। और शी कैन क्लेम दैट कि एक्स ने पहले मुझे प्रोवोक किया है, उसने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया है कि सुबह से शाम तक तुम घूमते रहते हो, जबकि शी इज ऑल देयर इन द क्लासेस एंड टू हर कॉलेज, और एआई से फेक वीडियो बनाकर पेरेंट्स को दिखाया है और पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तो शी सेड दैट आई हैव कॉज्ड द डेथ बट इन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दैट Satakshi acted under grave and sudden provocation which was given by X। क्योंकि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा तो जो लायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड शी विल बी ओनली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसी में और फैक्ट है, देख लेते हैं। दैट सताक्षी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, दैट सताक्षी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। Another fact is that Satakshi has been awarded many prize और अभी बुकर प्राइज मिला है, तो बुकर प्राइज से लेकर इसको बहुत सारे प्राइज मिल चुके हैं। That Satakshi had been awarded with many prizes. You have to decide out of these facts. Let us name these facts. It is F1, F2, F3, F4, F5 and F6 और ये आपके यूपी एपीओ का सवाल भी है। You have to decide that out of those fact कौन से फैक्ट इन इशू है। फर्स्ट फैक्ट से हम एग्जामिन करते हैं। Have you written? Because you all have to participate and answer. पहला फैक्ट क्या फैक्ट इन इशू होगा? That she had the intention to cause X death. Yes. Prosecution representing the state will be alleging that. She will be denying that. Yes. This will be fact in issue. क्या सताक्षी ने उसकी डेथ कॉज की है? This fact will be the fact in issue. Yes. At the time of doing act, she was of unsound mind. Is it a fact in issue? Yes. Disability है जिसको claim करके no liability. This is also fact in issue. Whether grave and sudden provocation is a disability which reduces the liability? Yes, that is also the fact in issue. What about last two fact? सताक्षी एक अच्छे इंसान है, ईमानदार इंसान है, क्या ये fact in issue होगा? No, not in this case. मान लो honesty से related कुछ issue होगा, then it could be. But in this case, this is not the fact in issue. What about this fact? That she has been awarded many prizes included Booker Prize. Again, it is not the fact in issue. और यही आपके एग्जाम में देकर पूछा है। 4 फैक्ट्स दिए हैं and they have asked that in UPAPO itself that is it the fact in issue or not. और prelims में तो it is very easy. Mains में when you see applied questions they are asking. और डरा नहीं रही हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा you'll be very easily to it is very easy for you to do all the questions of mains. तो ये दोनों फैक्ट में that is not the fact in issue in this case because fact in issue मतलब disputed fact जो उस पर्टिकुलर केस में एक पार्टी एसेट करेगी और दूसरी पार्टी डिनाई करेगी। यानी हर फैक्ट को हम ब्रॉड कैटेगरी क्या है? फिजिकल फैक्ट वर्सेस मेंटल फैक्ट। अनदर कैटेगरी ऑफ फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को हम फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड डू यू नो दिस कैटेगरी हैज बीन गिवन बाय जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर ने फैक्ट की एक कैटेगरी बताई थी कि फैक्ट को वी कैन कैटेगराइज इन रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। लेजिस्लेचर में तो दिया ही है। दे आस्क हु स्पेसिफिकली हैज कैटेगराइज फैक्ट टू बी रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। इट इज जस्टिस मुनीर। और जस्टिस का नाम लिखने का तरीका मैंने बताया, पहले नाम लिखोगे उसके बाद you'll be putting comma, single judge is there तो J डॉट, अगर एक से ज्यादा होंगे तो JJ डॉट।
because in Latin we used to write like that. So hope fact in issue is clear to you. Let us understand another thing. Document. Your notebook is a document. Whatever data are being saved in the smart panel, that is also a document. आप लोगों ने, किसी ने हो सकता है अपने हाथ पे या इन एनी बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया हो, that is also a document. So what exactly this document words means? जिसमें 4 चेंज लाया गया है. If we compare with old definition, let us see what is that. एक नया इलस्ट्रेशन भी जोड़ा गया है डॉक्यूमेंट वर्ड में, एंड अदर देन द इलस्ट्रेशन वर्ड्स हैव बीन एडेड. Document has been defined under 2 subsection 1 clause D. Let us see what is this word document. When you see the document word का definition, you will be finding that means word has been used. means word इस्तेमाल किया गया. इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन जो है उसे एग्जॉस्टिव बना दी गई है. लेट अस सी व्हाट दिस वर्ड डॉक्यूमेंट मींस. डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर which is expressed or described. पहले केवल क्या था? एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब था. अब अदरवाइज रिकॉर्डेड वर्ड भी एड ऑन किया गया है. Whatever change they have brought, that I am writing in red. Otherwise recorded. तो कोई भी मैटर जिसको हमने एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया या किसी वे में रिकॉर्ड किया है, कहाँ किया है? ऑन एनी सब्सटेंस. ऑन एनी सब्सटेंस कैसे किया है? लेट अस सी. इट कुड बी by way of letters on a substance, by means of letters, figures और marks. पहले केवल ये तीनों चीज थे, लेटर, फिगर, मार्क्स. और आपसे पूछते थे कि क्या सिंबल भी लिखा है? नो. बट नाउ दे हैव यूज्ड एनी अदर मीन्स. एनी अदर मीन्स यूज किया. इसका मतलब नाउ इवन सिंबल कैन बी इंक्लूडेड. एनी अदर मीन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. लेटर हो सकता है, फिगर हो सकता है, मार्क हो सकता है, तीनों, या लेटर सिंबल या मार्क लेटर, एनीथिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. और हम क्यों कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई वी आर डिस्क्राइबिंग और रिकॉर्डिंग ऑन एनी सब्सटेंस टू द हेल्प ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, बिकॉज उसके पीछे इंटेंशन है. इंटेंशन इज देयर आइदर टू यूज और मे बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सच मैटर. अगर हमारे इंटेंशन नहीं है उसे रिकॉर्ड करने की, देन इट विल नॉट बी द केस ऑफ डॉक्यूमेंट. फ्यू years back in UP interview, the interview board have asked कि one family is there and they were not having any phone in their hand. There is no photography, nothing available. बच्चा रेत पे घर बनाता है और जैसे घर बनाता है उसके बाद लहर उठा के उसे बिगाड़ के चली जाती है. Whether that घरौंदा which has been made on sand near the sea area, क्या वो डॉक्यूमेंट है? That person said yes. It is no document. Where is the intention for recording that? अगर हम वीडियो बना लेते, फोटो खींच लेते, then only. Because सबसे important element for describing anything as a document कि हम उसको या तो अभी यूज करेंगे या it may be used for recording of that matter. उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए may be used for recording that matter. It means to keep as an evidence of that thing. साथ साथ में ये इंक्लूड करता है
इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड? छत्तीसगढ़ में दे हैव आस्क्ड दैट, पहले भी दे हैव आस्क्ड, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया था एविडेंस एक्ट में, सिंस बिगनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज नॉट देयर। आईटी एक्ट अमेंडमेंट से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड इंसर्ट किया गया, और कंफ्यूज करने के लिए दे आस्क इन द एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग? डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट, और इट इज ओरल एविडेंस। और ज्यादातर बच्चे क्या लगा कर आते थे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और दे मार्क बोथ, बट इट इज क्लियरली दैट इट इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, क्योंकि लिखा है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब क्या चेंज लाया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड आल्सो दे हैव एडेड। बताऊंगी कि क्या होता है डिजिटल रिकॉर्ड जब हम पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन द कमिंग क्लासेस, एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड। और बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देकर पूछा है कि what is it इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डॉक्यूमेंट? इट इज डॉक्यूमेंट। एंड व्हाट न्यू दे हैव एडेड? डिजिटल रिकॉर्ड को भी एड ऑन किया है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लें कि डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, डायरेक्टली मार्क दैट इट इज डॉक्यूमेंट, बिकॉज दैट इज वेल मेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। So what changes they have brought? Let me tell you. 4 things are added. पहला चीज क्या है? ये अदरवाइज रिकॉर्डिंग की गई है। लिखने का तरीका, इट कुड बी एनी अदर मीन्स विच कुड इंक्लूड सिंबल ऑल्सो। तीसरा चीज व्हाट दे हैव डन, डिजिटल रिकॉर्ड को भी एड ऑन किया गया है, और एक और चेंज, एक इलस्ट्रेशन एड ऑन किया गया है जो पहले नहीं था, विच आई लेट यू नो। तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या किसी भी तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस पे। वो सब्सटेंस हो सकता है हमारा स्मार्ट स्क्रीन हो सकता है वो पत्थर हो सकता है कि इट इज पेज, जैसे यू पीपल आर राइटिंग इन द नोटबुक, इट इज अ पेज, दैट इज अ डॉक्यूमेंट।